Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is about global history, and the main topic is difference between world and global history, and we are discussing about obfuscation. As with ecumenical world history, there is often obfuscation of difference between world and global history. In a series edited for the American Historical Association, Colombian Voyages, Gender and Islamic History. फर्स्ट तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ऑब्फुस्केशन जो है ना बिटवीन डिफरेंस, यानी कि स्टार्ट से लेकर फ्रॉम द बिगिनिंग अब तक एक कंफ्यूजन लगातार आ रही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड द ग्लोबल हिस्ट्री. नो देयर इज़ अ बिग ऑब्फुस्केशन बिटवीन them. Now there is saying about history according to Bruce Maslish. As with ecumenical and world history, there is often obfuscation of difference between world and global history. Thus, in a series edited for the American Historical Association, means AHA, by Michael Adass, he speaks of a new global or world history. Means he called that new global or new world history according to new research, which differs in fundamental ways from its predecessors. That differences for Adass lead to a paraphrase of MC Nails. Ever seen of world history, Adass series itself is untilted essays on global and comparative history, and include not only an account of Abulov's 13th century, which we already have discussed about Abulov. Who is Abulov? I think we have already discussed 3 or 4 historians. Abulov 13th century world system, but essays on the Columbian voyages, means कोलंबस ने जो सफ़र किया था उसके बारे में बताया जा रहा है कि स्टार्ट जो पुर्तगाल से स्टार्ट हुआ था वॉयज का सिलसिला कोलंबस से, उसके बाद वो सारा सेटअप जो उसने उस टाइम में हिस्ट्री लिखी अकॉर्डिंग टू देम. एंड देयर इज़ अनदर डिफरेंस, मीन्स जेंडर एंड इस्लामिक हिस्ट्री, वो कुछ अलग है सर्च के हवाले से, और जो कोलंबियन हिस्ट्री है वो कुछ डिफरेंट है. इसी तरह हम ज़्यादातर यहाँ पर जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो है MC नेल की जो हिस्ट्री है ना, उसको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं. अब यहाँ पर जो एडैस है, एडैस ने लीड की है, कोशिश ये की है कि ज़्यादातर MC नेल की हिस्ट्री को ही फॉलो करें. जैसे पहले बताया अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन के मुताबिक कि जो माइकल एडैस हैं जिनकी बात की है, वो ये कहते हैं कि जो न्यू ग्लोबल है या वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, इसके जो फंडामेंटली वेज हैं वो क्या हैं, अपने स्टार्ट से लेकर काफ़ी हद तक डिफरेंट है. मीन्स ही वांट टू से दैट द बिगिनिंग एंड द नाउ today's time are differ from each other. Now about Adass series. Adass series offers serious and worthwhile contribution to world history. Means Adass series is totally about world history. His totally contribution means he has put much more experiences of his own self. Need exists emerge even often MC Nails, कि यहाँ पर उसने MC Nails को यहाँ पर पुट किया, उसकी थीरीज़ को, कि ज़्यादातर जो हमें अब तक डेटा फ्राहम हो रहा है वो ज़्यादातर MC Nails से ही ज़्यादातर रिलेट कर रहा है. नो ही डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन अफेयर्स, कि हाउ कैन ह्यूमन बीइंग सर्वाइव इन पास्ट इवेंट्स एंड देन प्रेजेंट, and their transformations, their agriculture revolutions. How can they change? How they have changed their agricultural revolutions, agricultural technology, and much more things. So there is series offer serious and worthwhile contribution to world history, because he had
a lot of researches. He had a lot of contributions to world history. Uh, he he argued, however, that it misses the title global history, which needs to be defined afresh in its own proper terms. That such a need exists emerges even from Ancinel, who comments, I suspect that human affairs are term blind, tumbling on the verge of a far-reaching transformation. No, he is telling us about the human beings are the verge of a far-reaching transformation, which he compares to the importance of the agricultural revolution. He tells us about the formal means एग्रीकल्चरल चेंज कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में फर्स्ट मैनुअली हल चलाए जाते थे, तो अगर हम आज के दौर को देखते हैं तो आज तो हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ है। उस टाइम की जो स्टडी हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, तो उस टाइम हम देखते हैं एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, किस तरह से हल लगाए जाते थे, किस तरह से बीज वगैरह बोए जाते थे, या किस तरह हार्वेस्टिंग का सिलसिला था, फसलों की कटाई होती थी, ट्रेड कैसे होते थे, या एग्रीकल्चर पूरा फील्ड किस तरह का था। और आज हम कंपेयर करते हैं टू डेज यानी अपने इस दौर के साथ, तो हम देखते हैं देर आर बिग डिफरेंस। नो, यहाँ पर एक और चीज़ वो कहता है कि encounters the same institution concerning the need for a newly defined global history in the important article by Michael and Charles Bright, whose very title World History in a Global Age मीन्स कि ये वो लोग थे, इन दो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर सर्च किया और वर्ल्ड हिस्ट्री को ग्लोबल एज में चेंज करने का, कि जो पहली हिस्ट्री थी उसको वर्ल्ड हिस्ट्री कहा गया, जो टुडेज़ मॉडर्न दौर की हिस्ट्री है इसको ग्लोबल एज का नाम दे दिया। एंड दैट इंडिकेट्स द ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस एज दे से। अब उन्होंने कहा है यहाँ पर जो ट्रांजिशन का सिलसिला है उसकी जो इंडिकेशंस हैं उनके मुताबिक सबसे पहले तो वो कहते हैं कि कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री स्ट्रेटजीज़, कि ये जो इस दौर की लाइफ सर्कल है या हिस्ट्री है उसके मुताबिक जो अब ग्लोबल एज है वो डिपेंड करती है। एक तो जो हमारी ये कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री है वो स्ट्रेटजीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कुछ एनालिटिक कैटेगरीज हैं, फिर इस पर कुछ ट्रेडिशनली वर्क किया गया है, फिर जिसमें कुछ ना कुछ क्राइसिस भी मिक्स है, क्राइसिस के बाद कुछ हिस्टोरियन के लिए चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। इसमें कहते हैं कि वी हैव बिफोर अस एज अ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ग्रेड्स अगेंस्ट द फेमिलियर explanatory strategies and analytic categories with which scholars have traditionally worked। मीन्स के स्टार्ट से अब तक जो अब कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है इस पर काफ़ी हद तक स्कॉलर्स ने वर्क किया है, काफ़ी हद तक उन्होंने रिसर्च किया है, एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। देन दे राइट अबाउट द हिस्ट्री, मीन्स देन दे रोट अबाउट द ग्लोबल एज। नाउ दिस इज द क्राइसिस अबव ऑल ऑफ वेस्टर्न इमेजिनिंग। मीन्स के ज़्यादातर हम जब अपने नॉलेज की बात करते हैं डेटा की, तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज बिलोंग्स टू द वेस्टर्न पीपल। मीन्स के यहाँ पर हम कहते हैं कि उन सब लोगों ने जो वेस्ट के लोग हैं काफ़ी हद तक क्राइसिस का सामना किया। देन दे इमेजिंग मतलब इमेजाइन किया, उन्होंने अपने मफरूज़े बनाए, हाइपोथेसिस ऐड किए, देयर थिंकिंग, but it poses profound challenges for any historian। The world we live in has come into its own as an integrated globe, yet it lacks narration and has no history। कहते हैं कि अब यहाँ पर हिस्टोरियन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है कि सबसे पहले तो वो कहता है कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, और इस पे हम जितनी भी डिस्कस करें, जितनी भी बहस करें, जितना भी इसके बारे में स्टडी करें, जितनी हम लोग सर्चेस करें, वो भी क्या है इस हिस्ट्री को अच्छी तरह से
एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉलेज इज अ वास्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, renewed world history. What is renewed world history? It begins challenges of a renewed world history, imagining of history, globality, world and globe. Now what is these things? These are basically terms, and in these terms the central challenges of a renewed world history at the end of 19th century is to narrate the world's past in an age of globality. Now he says that I believe, along with some others, that our imagining must leap from world history to global history, per in making this jump, a look at the etymology of the word, means word structure, words use, world and globe. This term basically tells us about the difference between the world and globe. Is its helpful word are not just what I say they mean, but have an historical nature. Okay, there is a big difference, there is a huge difference among world and globe, यानी कि हम दोनों में इनके बोलने के अंदाज से वर्ड से ही, ये दोनों वर्ड ही इस तरह की टर्म हमारे सामने यूज़ की जा रही है कि हमें ये डिफरेंस बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड हमें हिस्ट्री में ले जाता है. जो ग्लोब है, ग्लोब का मतलब हम अपने टुडेज वर्ल्ड की बात करेंगे कि इस दौर की बात जो होगी वो क्या चीज़ ज़्यादातर कोट की जाएगी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस. नेक्स्ट, द वर्ड वर्ल्ड मीन्स यहाँ पर है कि जो वर्ड है वर्ल्ड, यानी कि ये वर्ड जो वर्ल्ड है comes from the Middle English from human existence. Middle English from human existence. Its central reference is to the earth with its inhabitants and all things upon it. We can of course also speak of imaginary worlds as in the next word. First, he discussed that the word comes from the Middle English. Middle English में जो वहाँ के लोग थे, this word comes from them. Its central reference is to earth with its inhabitant. यानी इसका बेसिक मतलब ये था इस वर्ल्ड का कि ये दुनिया, ये ज़मीन, ये अर्थ और इस पर रहने वाले लोग या इस पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जानवर और दूसरे एनिमल्स तमाम लोग बीच में शामिल हैं. वी कैन ऑफ कोर्स आल्सो स्पीक ऑफ इमेजिनरी वर्ल्ड. हम इसे इमेजिनरी वर्ल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि एज इन द नेक्स्ट वर्ल्ड मीनिंग लाइफ, यानी कि इस जो नेक्स्ट वर्ल्ड है इसका जो मतलब है, उसका बेसिक मतलब है मीनिंग लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो लाइफ है वो क्या है, उसके बाद डेथ है. नो व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ? हमारा बिलीव है अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन दैट कि इस ज़िंदगी के बाद हमें क्या है, मौत आनी है, या हर जिंदा चीज़ को एक बार मौत का जायका चखना है. उसके बाद जो हिस्टोरियन हमसे बात कर रहे हैं वो भी बेसिकली हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें इस अर्थ पर मौजूद हैं मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको डेथ तक जाना है. वी आल्सो यूज़ द टर्म टू डाइजेसिनेट अ क्लास ऑफ पर्सन्स. अब हम एक और टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि पर्सन्स को क्लास की शक्ल में डाइजेसिनेट करने के लिए. एज इन द एकेडमिक वर्ल्ड historically the discovery of the new world is seen by many as making the advent of world history. Now what is the term? Means after the seeing the people but they are remaining still on earth and their interaction with earth and their inhabitants with earth, we are studying the discovery of new world in seen many as making, means के their movements, their classes, their work, their adventures, their discoveries, these all things are marking the advent of world history. More,
Recently, a first, second, and third world has been discerned, demarcating different level of development in different parts of the world. Now, there is a first, second, and third world has been discerned, demarcating different levels of development. अब जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे, द superior people, the superior nation, the superior community which are mostly belong to West according to these theories. They are first world, and then the lower world called the lower class countries, and the third world are the world that mostly poor community which are starving and much more things like that. No, these are things seen as the different level of development in different parts of the world. समटाइम हम लोग कहते हैं कि जी ये थर्ड वर्ल्ड से है, यानी गरीब मुल्क से है. फर्स्ट वर्ल्ड है मोस्टली बरतानिया, इंग्लैंड या यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज, वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं. उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वो कहते हैं हमारे जो उससे कुछ निचले तबके के लोग हैं वो सेकंड वर्ल्ड में आ जाते हैं जी. वो नई दरियाफ्त है, नई बातें हैं, उनकी इकोनॉमी भी डिफरेंट है, उनका कल्चर भी डिफरेंट है, उसको हम सेकंड वर्ल्ड में. इसी तरह थर्ड वर्ल्ड को हम एज वेल एक्सप्लेन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, a new world, third world globe for new world in 1492, spaceship, earth, globalization, encapsulated means के limited, limitized things. There is such usage ill accords with the term global, means one cannot substitute new globe for new world in 1492 or third globe for third world today. Means के one person not responsible, one search not responsible. There is a huge, there is a vast area, vast people, many people are responsible for this research. They research which we called New World in 1492, and there is a different balance to the word global. Different balance to the word global. It comes from the Latin word globus. Latin word globus, whose first definition is, what is definition? Something spherical or rounded. यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले तो कि किसी एक शख्स की रिसर्च नहीं है, डिफरेंट हिस्टोरियन की रिसर्च है, डिफरेंट हिस्टोरियन का वर्क है, थीरीज हैं, जो यहाँ पर ग्लोब फॉर न्यू वर्ल्ड इन 1492 की रिस्पॉन्सिबल है, जो कह रही है कि थर्ड ग्लोब भी है या फिर थर्ड वर्ल्ड है टुडे. अब इस पर डिफरेंट बैलेंस है इस लफ्ज़ पर, ग्लोबल पर, कि सबसे पहले तो जो लफ्ज़ है लैटिन लफ्ज़ से निकला है, लातिनी लफ्ज़ ग्लोबस से, ठीक है, जिसकी असल जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है कि कोई स्फेरिकल या फिर राउंडेड चीज़, मीन्स कि या गोल शेप में या फिर सफ़ेयर अंडे टाइप बेजवी शक्ल की कोई चीज़ हो तो. ए हैविली बॉडी, या फिर उसे कहते हैं एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम, कोई मैस कह दें, कोई मैटर कह दें, या कोई बॉडी कह दें. ओके, ओनली सेकेंडरी डज द डिक्शनरी देन ऑफर द synonym earth. Secondly, does the dictionary then offer the synonym earth? डिक्शनरी से फिर उसका synonym हमें मिला है ग्लोबल से कि अर्थ. नो, the word global thus points us in the direction of space and can include the notion of standing outside our planet and seeing spaceship Earth. This is a new perspective and as such one of the keys to global history. Now what is this? First we have discussed the definition, something spherical or rounded, a heavily body. या फिर हम ये कह सकते हैं a heavily body like spherical or rounded is called global, या फिर लैटिन वर्ड में ग्लोबस पढ़ते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, इसका हमने पढ़ा सेकेंडली सिनोनिम. इसका सिनोनिम है अर्थ. जब हम डिक्शनरी सर्च करते हैं तो हमें मिलता है वहाँ पर उसका मीनिंग अर्थ. अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये हमें
पॉइंट आउट कर रहा है एक डायरेक्शन की तरफ। किस डायरेक्शन की तरफ? स्पेस की तरफ। कि हम स्पेस में जाकर देखते हैं, वहाँ से इसकी कुछ पिक्चराइज करते हैं, तो हम स्पेसिफिक कुछ चीज़ें देखते हैं। यानी इस प्लेनेट से आउटसाइड पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम वहाँ से देखते हैं तो हमें वहाँ से नज़र आता है क्या कि सीइंग स्पेसशिप अर्थ, वहाँ से हम स्पेसशिप के ज़रिए अर्थ की तरफ देखते हैं। दिस इज़ अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड एज सच वन ऑफ द कीज टू ग्लोबल हिस्ट्री। अब ये पर्सपेक्टिव हमें उस पिक्चराइजेशन के बाद कहाँ पर ले जाता है? हमारी सोच की तरफ, जो ग्लोबल हिस्ट्री की तरफ ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज field of study. Know the novelty, our initial fields, globalization, factors. Know what are the other keys. I want to turn to them now, but before doing so, I need to say a bit more about the transition from world to global history. Now, there seen that कि यहाँ पर एक चीज़ कहने की ज़रूरत है कि जो ट्रांजिशन का अमल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो ये है कि हमने लफ्ज़ वर्ल्ड को ग्लोबल में चेंज कर दिया। यानी कि ओल्ड थिंग्स को, पास्ट थिंग को हमने थोड़ा सा मॉडर्निटी की तरफ मूव ऑन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ आई कैन डू सो बेस्ट बाय सजेस्टिंग that a definition of global history must come in two parts. Now another thing is two parts, two types of definition. The first is that it focuses on the history of globalization. First thing is that it focuses on the history of globalization. It focuses on history of the globalization. That is, it takes existing process encapsulated in what I shall call the factors of globalization. यानी इसको एक तो हमने लिमिटाइज कर लिया, हिस्ट्री को ग्लोबलाइजेशन पर डाल दिया, फिर इसको एक ख़ास फैक्टर की शक्ल में महफूज कर लिया, फिर देन स्टडीज दैम अ फार बैक इन द पास्ट एज सीन्स नेसेसरी एंड यूजफुल. The second is that global history is simply about processes that are best studied on the global rather than local, national or regional level. Now the second thing is globalization is simply about processes. Now processes that are be studied on a global rather than local. यानी कि ऐसी स्टडी जो लोकली पढ़ने के बजाय या नेशनल लेवल पर पढ़ने के बजाय या फिर किसी रीजनल लेवल पर पढ़ने के बजाय हम उसे ग्लोबली डिस्कस करते हैं, ग्लोबली स्टडी करते हैं. एज कैन readily by seeing the second definition is a continuation of much that is to be encountered in MC Neil's variations of world history. Now what is सेकेंड डेफिनेशन इज कंटिन्यूएशन ऑफ मच, यानी कि इसी चीज़ को अगर हम तारीफ़ों का सिलसिला लगातार डेफिनेशंस का जारी रखें तो हमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिलती हैं. सबसे पहले दैट इज़ टू बी एनकाउंटर्ड इन एमसी नेल्स वेरिएशंस, कि एमसी नेल ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जितनी वेरिएशंस दिखाई, जितनी अपनी थ्योरीज यहाँ पर हमें यहाँ पर शो करवाई हैं, तो इस हिसाब से तो ये तमाम डेफिनेशन उसके साथ मैच आउट होती हैं. नेक्स्ट वो कहता है विद द मेजर डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम आवर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ओपनली एक्नॉलेजिंग इट्स इन्फॉर्म्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि हम उसको देखते हैं, फिर मेजर डिफरेंस देखते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी हमारी सिचुएशन है मॉडर्निटी की, मॉडर्न दौर की, ग्लोबल एज की, वो क्या है बेसिकली हमें दोबारा एक्नॉलेज करते हुए किस तरफ ले जाती है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो कि एमसी नेल्स ने हमें बताई थी. नाउ द अदर थिंग इज बेसिक फैक्ट्स. व्हाट आर द बेसिक फैक्ट्स? देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स, देयर फैक्ट्स, स्पेसशिप अर्थ, weapons are utility plants. What is this?
Uh, the first part of our definition, the history of globalization, is both the heart and the novelty of global history. We have already discussed that it defines our initial fields of study and involved in globalization and the factors at work in our contemporary world. These are the questions we must attend to in an early attempt to deal with these questions. Now the facts he declared the facts that the starting point of global history lies in the following basic facts of our time. Although others could be added, but our thrust into space imposing upon us an increasing sense of being in one world. One world spaceship, Earth, as seen from outside the Earth's atmosphere, satellites in outer space that links the people of the Earth in an unprecedented fashion. Nuclear threats. Nuclear threats in the form of either weapons or utility plants showing how the territorial state can no longer adequately means protects its citizens from either military or ecologically related invasions, environmental problems that refuse to conform to lines drawn on a map, and multinational corporations that increasingly dominate our economic lives. Now what he is saying about that, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर दुनिया में रहने के लिए हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो हम अपनी जो थ्रस्ट है इसमें मज़ीद रिसर्च की उसको देखते हैं। उसके बाद हम अपने एटमॉस्फेयर को सैटेलाइट्स के थ्रू अपने अर्थ की आउटर लेयर को या अपनी अर्थ को आउटसाइड से देखना चाह रहे हैं। उसके बाद सैटेलाइट के ज़रिए ही लोग आपस में लिंक करते हैं एक दूसरे से, मींस इंटरनेट की फॉर्म में। उसके बाद ये एक अनप्रेसिडेंटेड फैशन बन गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ईदर वेपन्स और यूटिलिटी प्लांट्स। अब क्या है यहाँ पर कि वेपन की शक्ल में समझ लें या न्यूक्लियर की शक्ल में समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें इन सैटेलाइट के ज़रिए आपस में पॉसिबल हो गई हैं। लेकिन अब इसमें यह है कि हम इजीली एक दूसरे की टेरिटरीज को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि यस हमारी टेरिटरी ये है और हमने उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है और इस टेरिटरी के साथ जितने हमारे सिटीज़न हैं हमने उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब वो इधर हम मिलिट्री की शक्ल में करें, इकोलॉजिकली करें या फिर दूसरे इन्वेजन्स और फॉर्म में हैं या हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या फिर हमारे कोई रिफ्यूज़ टू कंफर्म टू लाइन डाउन ऑन अ मैप या फिर मैप पर हम अपनी कोई मल्टीनेशनली कॉरपोरेशंस को सर्च आउट कर लेते हैं या फिर हम कोई इकोनॉमिकली अपने लाइव्स को सिक्योर कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल कंज्यूमरिज्म? द फर्स्ट थिंग इज़ ग्लोबल कंज्यूमरिज्म, द गेयर ब्राइट आर्टिकल, globalization culture. So what is these things? Among others that could be added are global consumerism, obviously related to multinationals, human rights, to displacements of an international political system by a global one, means the Gare Bright article cited earlier is especially strong in this regard. Whose regard? The globalization of culture, especially music, as it is by satellite communications and so forth. Means यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, इंटरनेशनली पॉलिटिकली बाउंड्रीज की बात की जा रही है, जो ब्राइट ने हमसे अपने आर्टिकल में डिस्कस किया। सबसे पहले कल्चरल डिफरेंस की बात करता है
कल्चरल डिफरेंस के बाद उनकी बाउंड्रीज की बात करता है कि बिकॉज दे आर डिफरेंट इन कल्चर, ट्रेडिशन, in their living standard. That's why they have two boundaries. Now another thing is synchronicity, synergy and synchronicity, interaction with one another, reality that no effect, devote itself to studying. सबसे पहले तो ये आपको पता हो synergy और synchronicity बेसिकली ये भी इंटरेक्शन या मुताबकत या एक दूसरे से असर लेना या सिमिलैरिटीज़ की बातें करते हैं। फिर उसके बाद इंटरेक्शन की बात करेंगे, इंटरेक्शन विद वन अनदर, रियलिटी की बात करेंगे, दैट हैड नो इफेक्ट, क्योंकि रियलिटी तो रियलिटी है, ठीक है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इन सोसाइटी। फिर उस बंदे की बात करेंगे जो यहाँ पर अपने आप को डिवोट कर रहा है इटसेल्फ टू स्टडिंग, इसके बारे में। सबसे पहले तो एसेंशियल टू नोट इज द synergy and synchronicity of these various factors. It is their interaction with one another in ever increasing extent and force that is new, although all of them have their origins in a differentiated past. Globalization is the sum of their combined presences. Now, it is a reality that now affects every part of the globe and every person on it, even though in widely differing local contexts. In fact, one could say that much of global history has necessarily to devote itself to studying the factors of globalization in relation to a local reality which can take many forms. Now what is this? सबसे पहले तो मुताबिकत की बात करेगा, सिमिलैरिटीज़ की, कि बेशक वेरिएशंस हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट what is similar between them? Their dresses, their eating style, their drinking style, their means process of living, their process of hunting. Different things are same. Their interaction with one another. यानी अगर एक कल्चर में कोई कम्युनिटी के लोग हैं तो वो भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. What they have to language? What have language? What have their dresses? अगर दूसरे कल्चर में लोग रह रहे हैं, उनकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी उनका स्टाइल है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं आपस में. अगर एक तरफ ह्यूमन बीइंग हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल में जानवर रह रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं. यानी अगर चीज़ें पहले चेंज थी, हिस्ट्री में जो चीज़ें थी अब भी वही है, बट उनका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो गया. यानी कि इंसान स्टार्ट से लेकर अब तक वैसे ही चला आ रहा है, वही इंसान है, वही खाता है, वही पहनता है, वही ओढ़ता है, उसी तरह वो रहता भी है, उसी तरह वो सर्वाइव भी करता है, वो शिकार भी करता है. बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस स्टाइल बदल रहा है, वक्त के साथ स्टाइल बदलता आ रहा है. हिस्ट्री में कुछ और था, आजकल के दौर में कुछ और है. पास्ट इवेंट्स कुछ और बताते हैं, बट द मॉडर्न टाइम रिवील समथिंग न्यू, something different. No, globalization is the sum of their combined presence. It is a reality that no affects every part of the globe and every person on it, even though in widely differing local contexts. In fact, we could say that much of global history has necessarily to devote itself to studying the factors of globalization in relation to a local reality. सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये हिस्ट्री बनती है लोकल पर्सपेक्टिव को, जो जितने भी पर्सपेक्टिव हैं उनको कंबाइन करने के बाद, उनकी मूवमेंट, उनकी स्टडी करने के बाद फिर हम उसको ओवरऑल जब डिस्कस करते हैं तो ग्लोबली उसको डिस्कस करते हैं कि जो लोकल रियलिटी है, सबसे पहले हम उसको उसका रिलेशन शो करते हैं ग्लोबल के साथ, फिर उसके फैक्टर्स देखते हैं,
फिर उनके असरात इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, फिर उसकी डिवोशन देखते हैं स्टडी के अंदर किस हद तक है। नेक्स्ट फिर हम जाकर उस पर अदर। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीरियडाइजेशन पोस्ट मॉडर्न कंटेंट वॉज ट्रेंड। व्हाट इज दिस? Among the practitioners of global history, one can discern, as in artificial intelligence studies, adherents of a strong and a weak interpretation. The former are convinced that globalization has been bringing us into a new globe which replaces existing attempts at a periodization, such as postmodern or post-industrial. The adherents of a weak interpretation do not postmodern or post-industrial means interpretation do not want to go so far and are content to abstain from what they see as a divisionary periodization scheme. Means there is a huge difference, there is a division, there are parts, and to concentrate on studying the process of globalization without further claims. For those proponents of globalization who sees it as introducing a new period, of course the issue of when the global begins is worth attention as with when modern history begins. Means कि global attention start when the modern history attention start, with some opting for the 1950s and other for the 1970s. I place myself in the global camp and opt for the later time. This argument necessarily rotates around the question as to when a sufficient amount of synergy and synchronicity arises to justify the launch of a new periodization. यानी कि टाइम पीरियड के डिफरेंस की बात कर रहा है कि अगर टाइम पीरियड में चेंजिंग है बट यहाँ पर किसी ह्यूज डिफरेंसेस को कोई नहीं क्लेम कर पा रहा। क्यों नहीं कर रहा? चाहे 1950s में ये बात उठाई गई, चाहे 1970s की बात की गई, वो कहता है मैं अपने आप को एक ग्लोबल कैंप में रख कर ऑब्जर्व तो करता हूँ, हिस्टोरियन कहते हैं, बट वो कहता है कि तमाम चीज़ें पीरियडाइजेशन के बावजूद अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं कि वी हैव टू सिनर्जी एंड सिंक्रोनिसिटी, यानी हम मुताबिकत और सिमिलैरिटीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में मौजूद देखते हैं उसको। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री से ग्लोबल हिस्ट्री किस तरह से बनी और दोनों में डिफरेंस क्या है, किस हद तक दोनों में मीन्स के फ़र्क क्या है, किस तरह से चेंज हुई ओल्ड एज न्यू एज के अंदर, किस तरह इंसान के रवैये बदले, किस तरह से कल्चरल चेंजिंग आई। बट हमने पढ़ा कि किसी हद तक हम पढ़ने के बावजूद देखते हैं कि चीज़ें आपस में मुताबिकत रखती हैं, लोगों के कल्चर किसी हद तक सेम नज़र आते हैं। यानी अगर एक खित्ते में इंसान कुछ काम उस तरह से सरअंजाम दे रहा है तो दूसरे खित्ते में भी अगर इंसान है वो भी सेम काम कर रहा है बट थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, बट काम वही कर रहा है, खाने पीने का रिहाइश का वही अमल है। इसी तरह एनिमल्स लिविंग है उसी तरह है, उसी तरह से लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करना है, आना है, पैदा होना है, ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला है, उसके बाद फिर उनकी डेथ है। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है ग्लोबल हिस्ट्री का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।